Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's topic is three-dimensional geometric transformation, and it is to be very easy for us. Why? Because we have already done 2D transformation. So when you have done 2D transformation, it is same thing as 2D transformation. Only thing is we had an X and Y axis, okay? And now we have the one more axis, that is the Z. So you can write it like this, or you can write like this, Z here, X, Y. These are two conventions. Either you write this way, or left-hand rule, or right-hand rule. This is called left-hand rule or right-hand rule. That you have the X and Y and Z axis going away from you, or X and Y and Z axis coming towards you. This is called left rule and right-hand rule. Just see the books and you will just get it. Now, rest of the things, what we had done in a 2D geometry is one and the same thing. We talked there about homogeneous coordinates. Homogeneous coordinate. Why we had homogeneous coordinates? Anyone answer me? Homogeneous coordinates क्यों रखे थे हमने? ताकि ट्रांसलेशन में exactly क्यों ट्रांसलेशन हो या रोटेशन हो या कुछ ट्रांसलेशन में जो और हो, एडिशन होता है exactly वो एडिशन का वो वेक्टर हम डालते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही, ताकि एक सेम मैट्रिक्स हमारे पास हो। 2D में 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास थी, ठीक है, जिसमें हम काम करते थे हर एक के लिए। और यहाँ पे हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे एक z xy के साथ z भी आ गया, तो लास्ट में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स। अगर हमारे पास होमोजेनियस लगाना है, अगर हमें होमोजेनियस नहीं लगाएंगे तो हमें 3x3 की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पे जैसे 2D में 2x2 की मैट्रिक्स आती थी, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स आएगी, लेकिन उसमें ट्रांसलेशन डिफरेंट होगा देन अदर। सो अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स रखने सबके लिए, सो वी विल क्रिएट 4x4 मैट्रिक्स, ताकि वो tx, ty और tz जो मेरे पास होगा ट्रांसलेशन वेक्टर, ओके, जो ट्रांसलेशन के वेक्टर्स थे tx, ty, tz, वो मैं मैट्रिक्स के अंदर ही डालूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही है, वैसा ही है जैसे हमने किया था। इट इज वन एंड सेम थिंग, दैट थिंग, राइट। सो यहां पर भी हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये सारी चीजें यहां पर भी होंगी जो वहां पर थी, ओके। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ थोड़ा मैं फास्ट ही चलूंगा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ मैं डेरिवेशंस नहीं करूंगा जो मैंने वहां डेरिवाइव किया, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने एक एक करके मल्टीप्लाई करके दिखाया, यहाँ मैं वो नहीं करूंगा, ये वही सेम चीज है। अगर किसी को प्रॉब्लम्स आएंगे होंगी, ही कैन वॉच दैट वीडियो अगेन फ्रॉम द यूट्यूब एंड, ठीक है। इट इज सेम एज 2D, लेकिन यहाँ पे हमने z एक्सिस को और z कोऑर्डिनेट को बढ़ा दिया है, एज यू कुड सी हियर। सो अगर होमोजेनियस मैट्रिक्स लगानी है 4x4 की लगेगी, ठीक है, बिकॉज वी हैव x, y, z एंड w like this. We have x, y, z, and usually w is, we take it as 1. Okay, we take w as a 1 unit matrix. We take it as a 1, not unit matrix, sorry. And then for translation, we get this tx, ty, and tz inside the matrix, right? Okay. Rest it is same as that of our 2D transformation, what we had done already. There is nothing new. So you could have a right-hand coordinate system or a left-hand coordinate system. In the left-hand coordinate system, the z-axis is moving away from you. In the right-hand coordinate system, z-axis is moving towards you. Okay, and the rotation is counterclockwise. When we say rotation theta, because angle theta will be positive if it is counterclockwise. But if it is if it is clockwise rotation, then we say what is rotation axis? If we look from the axis, as you could see, is looking to the axis. Okay, see, he's looking from the top of this, he's looking from this where the x-axis, z-axis, and he's looking onto it, and we move into anti-clockwise direction, then theta is positive. But if we move clockwise, then theta will be negative. That is the only thing we need to know. Okay, this is the convention we use. Either we use right-hand rule or left-hand rule, where the z-axis is moving away from you or towards you, and the rotation has to be in counterclockwise direction. That is positive theta, like this, counterclockwise. And from where you see counterclockwise, if you see through that axis towards the origin. Okay,
you have to see axis, positive of axis towards the origin, and then you will see what is the clockwise or counterclockwise. क्योंकि अगर मैं यहां से देखूंगा, origin से देखूंगा, तो ये clockwise बन जाएगा, लेकिन मुझे देखना है कहां से, पॉजिटिव हाफ से टुवर्ड्स द एक्सिस, तो उसमें रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे आएगी ओवर द एक्सिस, ठीक है। तो उसमें थीटा हम पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज होती है तो थीटा नेगेटिव लेंगे, सिंपल बात। तो पहला हमारे पास होगा ट्रांसलेशन, क्या होगा, सो ट्रांसलेशन को पता है, ये ट्रांसलेशन होता क्या है भाई, ट्रांसलेशन होता है कि वो आप अब मेरे पास एक्स वाई एंड जी एक्सिस है, आपने किसी पॉइंट को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है, ये इसका एक्स वाई और जी था, लेकिन अब आपको सिर्फ एक्स एंड वाई नहीं देखना, आपको जी भी देखना है, ठीक है, इसका एक्स क्या था, इसका जी क्या है, इसका वाई क्या है, ठीक है, इस पॉइंट का, क्योंकि स्पेस में अब है, तो हमें खाली ये नहीं देखना कि इसका एक्स कितना था, इसका एक्स इतना था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, ये इसका एक्स है और ये इसका वाई है, लेकिन जी स्पेस में ये बाहर कितना निकला है, ये बाहर अब निकला है इतना, ठीक है, बस आ रही, क्योंकि ये जी एक्सिस में है ना, पहले ये प्लेन में था, पहले ये क्या था, पहले इस प्लेन में था, मैंने इस इधर से पॉइंट उठाया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप इस बुक की तरफ, पेज में देखो, कोई पेज में होगा, हाँ देखो, पहले हमारे पास एक प्लेन था 2D, यानी कि हमारे पास ऐसा था, अब मेरे पास ये था, फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये P1 है, ये P2 है। यहां देखिए आप, पहले आपने क्या काम किया था, आपने P1 को P2 से ट्रांसलेट किया था, ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस बंदे की ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, लेकिन अब आपको एक और एक्सिस है, वो है जी एक्सिस, दैट इज दिस थिंग, जहां पेन है मेरा, ये देखिए, ये जो पेन मेरा है, अगर ये आउट जैसे है, ये जी एक्सिस है, या इसकी तरफ भी, पीछे की तरफ भी हो सकता है जी एक्सिस, अभी फिलहाल हम यहां से लेंगे, ये मेरी जी एक्सिस है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो मेरा है, पहले जो पॉइंट ट्रांसफर करता हूं, वो मैं इस प्लेन पे कर रहा था, अब मैं इस प्लेन पे नहीं, मैं यहां से उठा के यहां डाल दूं स्पेस में, ये देखो मेरी जी एक्सिस है, अब यही एक्स और यही वाई मैंने ट्रांसलेट किया, लेकिन मैंने इधर लिया इस पॉइंट को, कहाँ, जैसे ये पेन है, ये मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट, ये इधर बैठा था, ठीक है, यहां से उठा के मैंने इसको यहां पे लगा दिया, तो अब जी एक्सिस बताएगा कि ये स्पेस में किधर गया है, तो 3 डायमेंशन है ना, बात समझ आती है, जो ये पेन आपको दिख रहा है मेरा, ये स्पेस के अंदर है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस और ये इसकी जी एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने लगाया, यहाँ पे आप देखो स्पेस में, यहाँ पे स्पेस में, इस पेज पे नहीं, पेज से बाहर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा लिया इसको, इसका एक्स एक्सिस भी आएगा, इसका वाई एक्सिस, ये सॉरी ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तीनों डायरेक्शन बताएगी कि यहाँ कहाँ पे गया है, समझ में आई, आर यू गेटिंग। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन में हम सिर्फ ऐड करते थे, ट्रांसलेशन वेक्टर x को t ऑफ x ऐड करते थे, y को t ऑफ y ऐड करते थे, और यहां z को हम करेंगे t ऑफ z ऐड, ठीक है, तो कितना ये x एक्सिस में, y एक्सिस और z एक्सिस में बड़ा है आगे, सिंपल वैसा ही रहेगा जैसे 2D ट्रांसलेशन था, ओनली थिंग इज कि z एक्सिस का रहेगा, क्योंकि अब ये स्पेस में जा रहा है, अब ये नहीं जा रहा है खाली प्लेन पे, प्लेन मींस 2 डायमेंशन, यानी कि इस पेज पे, पहले इस पेज पे घूम रहा था एक्स एंड वाई एक्सिस में, या ऐसे, लेकिन अब ये बाहर भी आ रहा है, अब ये पेज के बाहर आ रहा है, इस स्पेस में आ रहा है, तो उसमें जी एक्सिस का दखल होगा कि जी में कितना ये गया है आगे, अब आई समझ में आ रही है। सो वो जो हम इसको 4x4 मैट्रिक्स बनाएंगे, हम इसको टी ऑफ एक्स, टी ऑफ वाई, टी ऑफ जी यहां डाल देंगे अपना, क्योंकि एक्स प्राइम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे ताकि मुझे एक्स प्राइम जब निकालना हो तो ये निकलना चाहिए। सो एक्स प्राइम अगर मेरे को निकालना है, दिस इज 1 into x, that is x, आ गया x, 0 into y, that is 0 gone, 0 into z gone, t of x into 1, t of x, so x plus t of x आंसर आएगा, ठीक है। अब मेरे को y प्राइम चाहिए, अगर y प्राइम निकालना है 0 into x हो जाएगा, 0 into x, that is 0 gone,
1 इंटू वाई दैट इज वाई, आ गया वाई मेरे पास। उसके बाद 0 इंटू जी यानी कुछ नहीं, टी ऑफ वाई इंटू 1 टी ऑफ वाई, आ गया टी ऑफ वाई। इसी तरीके से जी प्राइम मुझे निकालना है, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई कुछ नहीं होगा, 1 इंटू जी होगा दैट इज जी, टी ऑफ जी इंटू 1 इज 1 टी ऑफ जी। सो जी प्लस टी ऑफ जी आ गया आंसर यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स मेरा काम करेगा। तो जब भी आपको ये काम करना होगा आप सिंपली ये मैट्रिक्स लगाएंगे। अगर आपको एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम निकालने हैं फ्रॉम योर ओल्ड वैल्यूज एक्स वाई जी, जो इसके ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यूज पे एक्स वाई जी, यहां से मुझे ट्रांसलेट करना है टू द न्यू वैल्यूज एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। ओके, आई हैव टू ऐड टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई एंड टी ऑफ जी टू द एक्स वाई एंड जी टू सी where it will reach in translate using the 3 dimensions। ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल 2D की तरह है, खाली आपको इसमें z एक्सिस का ख्याल रखना है। अब रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। सो रोटेशन जो आप बात करोगे, रोटेशन हमने कहा कि पहले बात यह है कि एंटी काउंटर क्लॉकवाइज आपको करना है, सो दैट विल बी द पॉजिटिव थीटा। और जिस एक्सिस पे आप रोटेट कर रहे हो, अब रोटेशन कैन बी रोटेशन कैन बी आइदर फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस। रोटेशन में थोड़े पंगे हैं। रोटेशन आपको एक्स एक्सिस में कर सकते हो आप एक्स एक्सिस पे, जैसे ये बंदा एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे कर रहा है और ये जी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है कोई चीज, ठीक है। लेकिन कभी कभार रोटेशन हम कर सकते हैं not on these axes but parallel to some axis, say for example parallel to x axis में इस axis पे rotate कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, which is not on the x axis but rather parallel to x axis। sometimes I use parallel to y axis and rotating on here, parallel to z axis and rotating here, or I could rotate on some arbitrary axis। मेरे axis ऐसे हैं और मैं यहाँ rotate कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई arbitrary angle पे है axis। तो या तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस पे रोटेट करोगे, या आप किसी एक्सिस पे जो कि पैरेलल आपकी किसी एक्सिस के है, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, जी के पैरेलल है, उन पे रोटेट करोगे, या आप किसी भी एंगल पे आपको है, ठीक है, आप उस पे रोटेट कर रहे, ठीक है, दैट्स व्हाट इज हियर। रोटेट अबाउट एक्सिस दैट इज पैरेलल टू अनदर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस। आर्बिट्ररी एक्सिस किसी भी एक्सिस पे आप रोटेट कर रहे हो, यानी कि आपको एक्स वाई जी ऐसे है और आप इस एक्सिस पे रोटेट करो यहाँ पे। अब इसको कैसे रोटेट करेंगे, अगर ऐसे ऐसे एक्सिस रोटेट, तो उसमें वो हमें चलेगा जो हमने कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन करके किया कि हम पहले इसको एक्स ओरिजिन पे लाएंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर इससे मैच कराएंगे और उनकी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होगा फिर कंपोजिट। यस, क्या था ना मैं, फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन। यस सर, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से हम करेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजें, ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, अगर आपको एक्स एक्सिस से रोटेशन होने वाली है, फिर एक्स एक्सिस है ना फयाज, आप अपना कैमरा बंद क्यों करते हो? बार बार आपसे कह रहा हूं योर कैमरा शुड बी ऑन, बट यू आर कीपिंग योर कैमरा ऑफ, दैट इज नॉट गुड। एवरीबडी शुड कीप योर कैमराज ऑन। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं मैं, इफ यू हैव टू बी इन माय क्लास कीप योर कैमराज ऑन। If you do not want to give classes, just set out of it। कोई आदमी अपना कैमरा ऑन रखो। Okay, does it make sense what I'm saying? So अगर मैं किस पे कर रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं ऑन द एक्स एक्सिस पे मैं कर रहा हूं रोटेट, अगर मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूं तो होगा क्या, जो एक्स एक्सिस मेरी होगी वो बेसिकली, एक सेकंड, Why is it not coming? Let me look at the cameras also. Samina Jafar, Safia, and Huadmir. Yes. Look here. Look into the screen. Let me take one screenshot. Okay. जो आपकी एक्स एक्सिस होगी क्या होगी,
अगर आप एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगी, y एंड z चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन दोस थीटास, cos थीटा एंड sin थीटा, जो हम पिछली बार कर चुके हैं उनकी डेरिवेशंस एंड ऑल, बिल्कुल वैसे ही है। और इसी तरीके से अगर आप z पे रोटेट करना चाहते हो, z खुद चेंज नहीं होगा लेकिन x एंड y चेंज होगा। इस तरह से अगर आप y पे कर रहे हो, y चेंज नहीं होगा और x एंड z चेंज होगा। सो लेट अस सी दैट। रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट द z एक्सिस, आप z एक्सिस पे कर रहे हो तो z एक्सिस खुद जो होगी वो z ही रहेगी, क्योंकि आप उसी पे रोटेट कर रहे हो तो z आपकी चेंज नहीं होगी। लेकिन y प्राइम विल बी x sin theta plus y cos theta and x prime will be x cos theta minus y sin theta. It will be exactly same way we did in the 2D transformation. ठीक है? Okay. So matrix क्या बनेगी हमें, यानी कि अगर आपको x prime निकालना है, it should be equal to x cos theta minus y sin theta. So multiply x with cos theta, that is x cos theta. Multiply minus sin theta with the y that is minus y sin theta. Multiply 0 with z, that is gone. 0 with 1 gone. तो निकला ये हमारे पास ये। तो y प्राइम कैसे निकलेगा, साइन को x के साथ करो, cos को y के साथ करो, बाकी 0 0 है वो गए पानी में। और z का z ही निकलना चाहिए, यानी कि यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पे 1 into z is z, 0 into 1 is 0, so ये z निकलेगा। और बाकी तो पता ही है ये 0 निकलेगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास रखते हैं ताकि 4x4 होमोजेनियस मैट्रिक्स हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप रोटेशन करोगे अबाउट द x एक्सिस, तो x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगी, x prime will be x only. What will be, can you calculate from this, what will be y prime? What will be y prime for this? Calculate from this. What will be y prime? X into 0 is 0, cos theta into y, what is that? Cos theta sin. Y cos theta. Y cos theta. Minus sin theta into z, that is minus z sin theta. 0 into, that's gone. So this will be my y prime. What will be my z prime? What will be my z prime? Calculate. Sin theta plus cos theta. क्या sin theta? Y sin theta. Y को मल्टीप्लाई करो ना Sin sin theta theta. के साथ, x को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, वो गया Y पानी sin में, theta. y into sin theta plus z cos theta. हाँ z cos theta. Okay, and that's it. ठीक है, what will be the x here? X prime. X prime will be x only. So calculate for this one. When you are changing from the y prime will be equal to y. But what will be your x prime now here? What will be x prime? Tell me. From the calculate. Cos theta X into cos- x. That is x cos cos theta plus 0 X into cos y. theta That z is sin theta. plus z sin Theta theta. Yes. Z sin theta. That's it. Sin theta. What is y prime? Y prime तो निकल गया मेरे पास. What is z prime? Minus x sin theta 0 plus z cos theta. Z cos theta. That's it. ठीक है, ये हमारे पास That is, निकलेगा। sir. ये Yes, कैसे sir. निकला हमें? ये cos theta sin theta कैसे निकला हमें? It is same thing. I have shown the trigonometric ratios using the 2D transformation. The same here, right? Do your workout from that video. Okay? अब 3D रोटेशन करेंगे पैरेलल टू द एक्सिस। अब हमारे पास ये हमारे पास आएगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब मेरी जो रोटेशन करनी है वो मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस पे नहीं कर रहा हूं, मैं किसी ऐसी एक्सिस पे करता हूं जो किसी एक्सिस का पैरेलल है। जैसे मैं कर रहा हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पे? सिंपल है, क्या करना चाहिए? पहले रोटेट करना चाहिए, पहले इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। Translate to origin. एग्जैक्टली अब ओरिजिन में नहीं, इसको पैरेलल, इस एक्सिस को हम पैरेलल बिठाएंगे एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ताकि ये कहां पे आ जाए, ताकि ये आ जाए इस एक्सिस के ऊपर, ताकि इस एक्सिस के ऊपर ही आ जाए। ठीक है, जब ये इस एक्सिस के ऊपर आ जाएगी उसके बाद मैं रोटेशन मारूंगा इसकी, हो गया ये रोटेट। Rotate. अब रोटेशन हो गई इसकी ऑन एक्स एक्सिस।
अब वापस में लाऊंगा, then further translate. हाँ पहले माइनस टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई टी ऑफ जी करूंगा, फिर ये प्लस टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई टी ऑफ जी करूंगा, ताकि वापस अपनी जगह आ जाए। ठीक है ना? Inverse translation, rotation, हाँ, translation. तो कुल मिला के इसको ट्रांसलेशन होगी, फिर रोटेशन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी। इन तीनों के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, मैंने दिखाया कैसे करते हैं, और वो आपका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना? वो हमने कर चुके हैं इन आवर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से अगर y पे एक जाता है, अगर ये y पे होता, किस पे? Y X. हाँ जी, अगर ये y पे होता, अब ये दिखाया नहीं, यहाँ पे करेंगे। अगर फर्ज कीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ये y एक्सिस के ये होता, यहाँ पे इस एक्सिस पे हम कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ये तो क्या हो जाता? पहले इसको ट्रांसलेट करते ताकि ये एक्सिस बराबर आए y एक्सिस के साथ, उसके बाद रोटेट करो आप, ठीक है, उसके बाद वापस लाओ, रोटेट करके बाद वापस लाओ। इसी तरीके से अगर मेरे पास z एक्सिस होता, इसके पैरेलल अगर मैं करता इसको, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा होता कि मैं इसको ये मेरा ऐसा है कुछ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको पहले क्या करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा टू द z एक्सिस, ठीक है, ताकि ये आ जाए, ताकि ये आ जाए z एक्सिस के ऊपर, ये z एक्सिस है, ताकि z एक्सिस के ऊपर आ जाए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप रोटेट करो, उसके बाद क्या करो आप, रोटेट, फिर ये यहाँ से यहाँ, यानी रोटेट करूंगा मैं इसको, यहाँ पे आ गया रोटेट। अब इसको वापस ट्रांसलेट करूंगा मैं, ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए जहां पे इसको आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया, रोटेट होके इधर पे आ गया ये, फिर यानी कि फिर मैंने ट्रांसलेट को वापस किया अपनी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे इसको रोटेट होना था। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रांसलेशन करनी है on an axis parallel to your axis, you first translate it to the axis so that the axis matches with some axis जिसके पैरेलल थी उसको मैच करे। उसके बाद आप रोटेट मारे, उसके बाद आप इसको वापस ट्रांसलेट करें अपनी जगह। ठीक है ना, ये चीजें हम कर चुके हैं, दिस इज वन एंड सेम थिंग, इसलिए मैंने कहा कि ये हम सब कर चुके हैं। अब लास्ट चीज में बचती है कि आपको जो बंदा है, ओके, अब ये है कि एक आर्बिट्री एक्सिस में आप कर रहे हो। अब आर्बिट्री एक्सिस, अब एक्सिस जो है वो मैच नहीं कर रही है। ठीक है, जो आपकी एक्सिस थी पहले, आपकी एक्सिस पैरेलल आ रही थी इसके, तो आप इसको उठा के यहां ट्रांसलेट करते थे। अब ये ऐसा मसला नहीं है, अब कुछ मसला ऐसा है कि ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है। अब क्या करोगे, अगर मैं इसको लॉन्ग ट्रांसलेट करूंगा यहाँ पे, तो ये ऐसे तो नहीं आएगी ना, ये ऐसे आएगी, फिर भी आएगी ना, बस में आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पैरेलल नहीं ना है, क्योंकि पहले आपकी जो एक्सिस थी वो पैरेलल थी, वो एक्स एक्सिस के फर्ज कीजिए पैरेलल थी। मैंने ट्रांसलेट किया, ये बिल्कुल मैच हो जाएगी, एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अब जो ये लाइन है ये टेढ़ी है, ये ऐसी है। अब अगर मैं इसको लाऊंगा एक्स एक्सिस के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा, सॉरी, अगर एक्सिस लाने की कोशिश करूंगा, ये मत बैठेगी इस पे, ये लाइन रोज ना आई तीत कहीं रोज ना। सो ये मसला है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको ओरिजिन पे लाते हैं। हम ऐसी लाइन को पहले क्या लाएंगे, ओरिजिन पे। जैसे ये वाली लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे लेकिन टू द ओरिजिन। जो ये ओरिजिन पे आएगी, अच्छा हायर तो होता है ना, इमा चाहे पैरेलल वो सी की, अगर ये पैरेलल आए ये बेहद से दिया पे वायस पे अड़बे है, क्योंकि ये आर्बिट्री एक्सिस में थी, किसी और एक्सिस में थी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको मैंने ट्रांसलेट किया, उसके बाद ये फिर भी इसको ये है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको रोटेट। अब मुझे रोटेट करना चाहिए ताकि ये बैठेगी बिल्कुल किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, है ना, किसी एक्सिस के ऊपर बैठेगी, चाहे वो जी एक्स पे, यहाँ पे जी एक्स पे बिठा रहा है, यानी कि इसको यहाँ रोटेट इसने मारा है ताकि बैठ गई किसके ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जिस एक्सिस के नजदीक होगा उस एक्सिस के नजदीक बिठाऊंगा मैं उसको। फर्ज की यहाँ रोटेट किया तो ये जी एक्सिस के ऊपर बैठ गई ऐसे। अब उसके बाद मैं रोटेट करूंगा जो मुझे रोटेट करना है। ठीक है, फर्ज कीजिए मुझे एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, क्लियर, ये ऐसे है ना, स्ट्रेट, एक्स और वाई स्ट्रेट होते हैं, जी होता है या तो इधर की तरफ या उधर की तरफ। अब ये फिलहाल इधर है, ओके, और मुझे एक बंदा ऑब्जेक्ट है, ये बंदा है मुझे,
ठीक है, लेकिन ये किसी एक मिनट, क्लियर, सारा ही क्लियर हो गया। हाँ, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से है, ये इस एक्सिस पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इसकी एक्सिस ये है, ये ऐसे जा रहा है कुछ, या फर्स्ट ये एक्सिस की है, ठीक है। अब पहले क्या करूंगा, मैं इसको ओरिजिन पे लाऊंगा, इस ओरिजिन पे लाऊंगा इसको मैं, तो मैंने उठा के इसको ट्रांसलेट करना है ताकि ये एक्सिस इसके ऊपर आ जाए। चलो ऐसे आती है, और इसी के ऊपर एक ट्रायंगल था ऐसे, ठीक है। अब हो गया ये। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं रोटेट मारूंगा ताकि ये वाई एक्सिस के साथ मैच करे। अब मैं इसको वाई एक्सिस के साथ मैच करूंगा, रोटेट करूंगा मैं इस एक्सिस को, ठीक है। जो ये वाली एक्सिस थी, ये जो वाली एक्सिस थी ऐसे, इसको मैंने रोटेट किया ताकि ये इसी के ऊपर बैठे, इसके ऊपर, ताकि ये इसकी इस लाइन के ऊपर बैठे। कलर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे ताकि ये इस वाई एक्सिस के ऊपर बैठे। और आ गया ऑब्जेक्ट अब इधर। अब इसको मैं रोटेट करूंगा, अभी रोटेट हो रहा है, उसके बाद इसके बाद मैं रोटेट करूंगा इसको, तो रोटेट होके ये आ जाएगा ऐसे। फर्ज कीजिए यहाँ पे मैंने रोटेट इसको किया, अब ये रोटेट होके इधर चला गया, ऐसे चला गया रोटेट होके। उसके बाद मैं इसको वापस ट्रांसलेट करूंगा। क्या करूंगा, आई विल गेट इट बैक, आई विल रोटेट इट बैक फर्स्ट। पहले इसको वापस रोटेट करेंगे ताकि ये उसी एक्सिस में आ जाए जिस एक्सिस में ये था, ठीक है। यानी कि सॉरी, यानी कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस ऐसे हैं, तो इसको मैं रोटेट करूंगा ताकि ये इसी एक्सिस में आए रोटेट होके। तो ये रोटेट होके इसी एक्सिस में आए जो एक्सिस मेरे पास थी, इसकी ये वाली, ठीक है। फिर एक मिनट में दिखाऊंगा क्लियर ऑल। बीच में आ गया ना ये 10 मिनट वाला, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे बीच में बैठ गया ये। यानी कि जो मैंने इसको फिर रोटेट करवाया था, यानी कि मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ, यानी कि ये जो मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है और मेरा जी एक्सिस है, ये हो गया था ऐसे, ठीक है। अब पहले मैं इसको अपने उसी पे बिठाऊंगा जो मेरी इसकी थी ना, ये एक्सिस जो ऐसे थी, ये वाली एक्सिस। अब मैं इसी पे लाऊंगा इसको, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा रोटेट होके वापस। उसके बाद मैं वापस ट्रांसलेट करूंगा जहां पे ये था, अब था ये यहाँ पे था ना, तो इसको मैं ट्रांसलेट करके वापस लाऊंगा इसमें, और ये रोटेट होके उधर वापस आ जाएगा। यानी कि पहले मैं इसको रोटेट ट्रांसलेट करूंगा टू द एक्सिस, किया एक्स रोटेट, उसके बाद रोटेट करूंगा ताकि ये मुझे एक्सिस इसकी और इसकी मेरी एक्सिस मैच हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं रोटेशन मारूंगा अपनी, अब ऑब्जेक्ट की रोटेशन, पहले मैं एक्सिस की रोटेशन मारा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की रोटेशन मारूंगा ताकि मैं रोटेट करूं इस चीज को, किया रोटेट, हो गया रोटेट। उसके बाद मैं वापस इसको एक्सिस को रोटेट करूंगा, जो मेरी यहाँ पे एक्सिस को रोटेशन की थी, उस एक्सिस रोटेशन माइनस करूंगा, ओके। उसके बाद मैं माइनस इसको वापस ट्रांसलेट करूंगा, कहाँ पे, वापस लाऊंगा जहां पे ये था, ठीक है। एंड आई गॉट द फाइनल प्रोडक्ट। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है? Yes, sir. एग्जैक्टली। इसी तरीके से 3D स्केलिंग है। 3D स्केलिंग में भी आपको 3 डायमेंशन लेने हैं, कि यानी कि स्केल आप 3 डायमेंशंस में कर रहे हो। तो उसमें जो आपका वेक्टर बनने वाला है, जैसे 2D यहाँ पे 2D सॉरी 3D स्केलिंग विदाउट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ये हैं फॉर एग्जांपल। यानी कि आपको पता है कि x प्राइम विल बी एक्चुअली इक्वल टू s डेल्टा x इनटू x, ठीक है ना। जितना भी डेल्टा x आपका वेक्टर है, स्केलिंग वेक्टर है आपको x में, और y प्राइम निकलेगा डेल्टा y इनटू y, और जो z प्राइम निकलेगा दैट विल डेल्टा z इनटू z, ये हमें निकलेगा। तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x इंटू डेल्टा x, ये बाकी जीरोस, y इंटू डेल्टा y, ठीक है ना, x इंटू जीरो, y इंटू डेल्टा y, z जब z होगा x 0 हो जाएगा, y 0 होगा, और z। लेकिन हम दिखाते हैं 4x4 होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना। वहां पे x y z और 1, और x प्राइम y प्राइम z एंड 1 प्राइम। सो व्हाट विल बी x इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू x इंटू डेल्टा x, या sx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे sx लिखा है, we can use the sx. sx is what? It's a vector how much you scale. Scale means क्या, बड़ा करना या छोटा करना। बाकी 0 0 0 आ जाएगा इन तीनों जगह, तो s of x into s of x आ जाएगा। y की जगह पहले 0 है, x के लिए x 0, s of y into y आ जाएगा 0 0 बाकी। z में यहाँ पे z की जगह ये है, बाकी जगह 0, यानी कि x into 0, y into 0, z into this, 0 into 1, that is s
ऑफ z इंटू जी। ओके, सो यानी कि कुल मिला के जहां पे आपको जितना आपको ये करना है, अगर x प्राइम कितना करते हो, x प्राइम विल बी डेल्टा x इंटू x एंड y प्राइम विल बी डेल्टा y इंटू y, और यू कुड से z प्राइम इज इक्वल टू, अगर आप डेल्टा नहीं लिखते हो s ऑफ z लिखते हो वो भी चलेगा, इंटू z। यानी कि कितना स्केलिंग फैक्टर आपको z में है, y में है और x में है, वो मल्टीप्लाई करोगे आप, और ये इसकी मैट्रिक्स होगी। ये सेम मैट्रिक्स है एज दैट ऑफ 2D मैट्रिक्स, बिल्कुल वही है, सिर्फ z इसमें एडिड है, z एक्सिस एडिड है, ठीक है ना? समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। मेरी हालत ही खराब है यार, पेन आ गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था शायद, है? That's all for today. We will see you guys tomorrow with different topics. लेकिन पहले आप मुझे उसको पॉजिटिवली सारी करके देंगे, ठीक है? यानी कि अगर आपको हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप मुझे ये करो कि कहाँ गए, उसमें सिर्फ प्रिंट फंक्शन आपको है कि अगर आपको प्रिंट करना है, क्या करना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका लिंक्ड लिस्ट है, ये इसको लिंक कर रहा है, ये इसको लिंक कर रहा है, ये इसको लिंक कर रहा है ना? सो टॉप और स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस। सो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल लगाओगे इज इक्वल टॉप, टेम्प एरो डेटा प्रिंट करोगे, और टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, टेम्प एरो लिंक इज पॉइंटिंग टू दिस, दैट मींस टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस। सो प्रिंट टेम्प एरो डेटा एंड टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, टेम्प एरो लिंक इसको, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। प्रिंट टेम्प एरो डेटा एंड टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, वो इसको पॉइंट करेगा यहाँ पे लास्ट में, इसके इसमें नल होगा यहाँ पे। सो टेम्प यहाँ पॉइंट करना है, टेम्प एरो डेटा प्रिंट करो, टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, टेम्प एरो लिंक नल आ गया, स्टॉप। सो व्हाइल, इसमें लूप लगी सिंपल, व्हाइल टेम्प एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, है ना? तब तक क्या करोगे आप, टेम्प एरो डेटा प्रिंट करोगे, पहले ऊपर आप टेम्प को रखोगे किसके बराबर, स्टार्ट के, है ना? टेम्प इज स्टार्ट है, जो स्टार्ट है वही आपका टेम्प है। उसके बाद क्या करोगे काम, व्हाइल टेम्प एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलता जा, टेम्प एरो डेटा को प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे इसको, ठीक है ना? सी आउट टेम्प एरो डेटा वो प्रिंट करेंगे, और टेम्प को आगे चलाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक, एंड दैट्स इट, दिस विल बी द प्रिंट फंक्शन ऑफ इट। तो सिंपल है कि आप एक झटक से करने चाहिए, क्योंकि आपने लिंक्ड लिस्ट के सारे ऑपरेशंस किए हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको अभी आप करेंगे सारे के सारे, ठीक है? स्विच केस लगाएं, वो हमने किया है, कोड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी से कॉपी पेस्ट करके उसमें फिट करें एंड डू इट एंड सेंड मी एज क्विक एज पॉसिबल ऑन द ग्रुप, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज।